Hello and very good evening to all the viewers. Uh, Hope that the things are audible enough and it is visible enough. Uh, Let us wait for a while till I am getting some feedbacks and I am getting some notifications. This is a very good evening time. Hello everyone. Hope that you can see me properly. You can see me live. You can see me talking. Hope that audio video is functioning properly. I think someone has joined. Mansi has joined. Hello Mansi, hope you are doing good during this time. This is too good. I'm very happy the way the people are using the digital medium, and I'm very happy कि मैं जिस पेज से अभी लाइव कर रहा हूँ वो जो पेज है, it is very esteemed page possible because it is one of the finest page where lot many social activities are being done. Every time whenever we see that there is any need in the society which includes this corona times, every time the people has the people or the team of the Karma Foundation has always worked excellently. इस बार भी जैसे कि हम जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ ये कर्मा फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए कई लोगों ने इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को की है. एंड देन आई एम वेरी हैप्पी कि आज उन्हीं लोगों के साथ कुछ विचार जो हैं वो मुझे शेयर करने की मुझे प्लेटफॉर्म मिला है. दिस इज़ वेरी नाइस. एंड आई हैव सीन कि दिस डेज जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो कोरोना का पूरा वक्त गया है और अभी भी जिस प्रकार से जा रहा है, it needs much more patience, it needs much more warmth. और ये जो warmth है, ये जो patience है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जिस प्रकार से कर्मा फाउंडेशन काम कर रहा है, इस प्रकार से के सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ही ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आ पाएंगी. So this is something which is the fabulous thing we can think for. The people are joining. आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि in today's time we see a lot number of cases where कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस के कारण हम अपने आप से खुश नहीं हैं. This is something which is very interesting thing which we are seeing. I'm just before I come to a proper topic, I'm just waiting for some more to join. So that's why थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि आजकल हम बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से देखते हैं कि जो कहीं ना कहीं बहुत ही डिस्टर्ब हैं अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक प्रकार का पेन, एक प्रकार का हर्ट, एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, वो सब जो है वो कंसिस्टेंटली चलता रहता है. और ये सब होने का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस है वो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. और उसी मैनेजमेंट के डायमेंशन से अगर देखा जाए तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू लर्न इज टू लर्न बैलेंसिंग अवर इमोशंस. हमारी जो इमोशंस हैं, આપણું જે લાગણી તંત્ર છે એને સમજવું, ઓળખવું
અને એને બેલેન્સ કરતા શીખવું, આ સૌથી અગત્યની વાત છે. અને માટે આજે આપણે આ ટોપિક પસંદ કર્યો છે. બિફોર આઈ કમ ટુ ધીસ ટોપિક, હું ચોક્કસ એક બેઝિક વાતનો પરિચય આપવા માગીશ કે અત્યારે હું જેમના પેજ પરથી લાઈવ છું, દેટ ઇઝ કર્મા ફાઉન્ડેશન, અને એમાં એક જે એની સાથે જોડાયેલી એક અગત્યની એક્ટિવિટી છે, દેટ ઇઝ અગેન્સ્ટ ડિપ્રેશન. ધીસ એક્ટિવિટી ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે એમાં હું મારી સાથે જોડાયેલા બીજા ઘણા બધા એવા લોકો કે જે લોકો હંમેશા એવો પ્રયત્ન કરે છે કે ઇન ટુડેઝ ટાઈમ ધ વે ધ પીપલ આર ડિસ્ટર્બ્ડ ઇમોશનલી, ત્યારે ડિપ્રેશનને અપ્રોપ્રિએટલી ડીલ કરવું એ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ સબસ્ટન્સ એ અત્યારના સમયનો થઈ ગયો છે. લેટ મી ટેલ યુ, આપણને એમ લાગે કે આ ડિપ્રેશન તો બધા નબળા મનના લોકોનો ખેલ છે, પણ એ વાત બહુ ભૂલ ભરેલી છે. ડિપ્રેશન એ ઘણા પ્રકારનું હોય, પીડિયાટ્રિક પણ હોય, જેરિયાટ્રિક પણ હોય, યંગ એડલ્ટહુડમાં પણ હોય, અને આ બધા જ ડિપ્રેશનની પાછળ જેવી રીતે આપણા ડાયાબિટીસ થવા પાછળ ઘણા બધા કારણો છે, એવી રીતે આ પ્રકારના ડિપ્રેશનની પાછળ પણ ઘણા બધા પ્રકારના કારણો એ જોડાયેલા છે. અને માટે એને સમજવું, એને ઓળખવું એ બહુ જ જરૂરી છે. So this is what the basic note is. I think enough people has joined. I'm very very happy, and I'm starting to talk about the today's topic. So અમે લોકોએ અગેન્સ્ટ ડિપ્રેશનમાં એવો પ્રયત્ન કર્યો છે કે દરરોજ અલગ અલગ વ્યક્તિ એ જોડાય અને આપણે અલગ અલગ ડાયમેન્શન્સ પર વાત કરે. એમાં આજે મારા ભાગે જે વાત કરવાની આવી છે એ વાત છે ડીલિંગ વિથ ઇમોશનલ હેલ્થ, લાગણી તંત્રનું સ્વાસ્થ્ય, ઇમોશનલ હેલ્થ, એની સાથે ડીલ કરવું. અને બહુ એક અગત્યની વાત એ છે કે ખબર નહીં કેમ આપણા સમાજમાં આ જગ્યા એક બહુ મોટો લેક્યુના છે. ડુ યુ નો વોટ ઇઝ દેટ લેક્યુના? આપણે લોકો જેટલું પણ ફિઝિકલ લર્નિંગ છે ને એના પર બહુ જ ધ્યાન આપીએ. જેવી રીતે નાનપણમાં બાળકને ચાલતા શીખવું હોય તો આપણે બહુ બધા એને અલગ અલગ પ્રકારના વોકર્સ લઈ આપીએ. બાળકને ખાતા શીખવું હોય તો સારામાં સારી સ્પૂન્સનો સેટ, ડિશનો સેટ લઈ આવીએ. આપણે જો બાળકની સાથે બાળકને બીજા બધા ડાયમેન્શન્સ પર જેટલું સક્ષમ બનાવવું હોય, દાખલા તરીકે બાળકને સારું ઇન્ટેલિજન્સ ડેવલપ કરવું હોય, તો આપણે સારામાં સારી કિટ્સ લઈ આવીએ, સારામાં સારા આપણે ટોયઝ લઈ આપીએ, સારામાં સારા આપણે એના માટેના જે કોઈ જરૂરી ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય એ ઇક્વિપમેન્ટ્સ આપણે એનામાં લેતા આવતા હોઈએ છીએ. ધ ઓનલી રીઝન વાય વી આર ડુઈંગ ધીસ is nothing but to make our kids better in life. પણ જેટલું જરૂરી બાળકોને ફિઝિકલ ડાયમેન્શન્સ પર સક્ષમ બનાવવું છે, એટલું જ જરૂરી છે આપણને ઇમોશનલ ડાયમેન્શન્સ પર સક્ષમ બનવું. આપણને એની કોઈ ટ્રેનિંગ નથી મળતી. એની ટ્રેનિંગ આપણે બહુ રેન્ડમ લઈ લઈએ છીએ. કેવી ટ્રેનિંગ હોય? મમ્મી પપ્પા તો બોલે, ખોટું નહીં લગાડવાનું. કેવી ટ્રેનિંગ હોય? ટીચર બોલશે, તારે મન પર નહીં લઈ લેવાનું. અથવા તો ટીચર બોલે છે ને, કંઈ વાંધો નહીં, આપણે કાન પર નહીં ધરવાનું, 2 કાન છે, આપણે એક કાનેથી કાઢીને બીજા કાને નાખી દો. ઓર ક્યારેક ક્યારેક આપણે તમારું કોઈ ફ્રેન્ડ છે એ તમારી સાથે નથી બરાબર બિહેવ કરતું ને, કંઈ નહીં, આપણે એની જોડે નહીં બોલવાનું, આપણે એની આગળ પાછળ નહીં ફરવાનું. The way we are dealing, see, very very important, the way we are growing our kids, એમાં ઇન રિયલ મીન્સ આપણે એને ઇમોશનલ મેનેજમેન્ટ તો શીખવાડતા જ નથી. જેમ ચાલતા શીખવાડ્યું એમ લાગણીનો પ્રવાહ, ઇમોશનલ ફ્લો કેવી રીતે બેલેન્સ કરવાનો, કેવી રીતે મેનેજ કરવાનું, આ બધું શીખવાડવાનું રહી જાય છે. અને પરિણામે ક્યાંક ને ક્યાંક લાઈફમાં બધું જ હોવા છતાં, આઈ વિલ રિપીટ, in spite of having everything with you, you feel discontented.
सब कुछ होने के बावजूद हमारे मन में से असंतोष की भावना जा नहीं रही है, क्योंकि हम लाइफ में हमारे इमोशंस को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. एंड दैट्स द रीजन, यू नो, मेनी टाइम्स कि आप किसी को भी मिलोगे और बोलेंगे कि और कुछ स्ट्रेस हो तो बताएं, तो तुरंत ही लोग बोलना शुरू कर देंगे स्ट्रेस तो होगा ही ना. किसी को इनलॉज के साथ अच्छा नहीं है, कोई इनलॉज को यानी पेरेंट्स को बहुओं के साथ अच्छा नहीं है, किसी को बॉस के साथ अच्छा नहीं है, किसी बॉस को अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ दे आर नॉट हैप्पी, किसी को अपने नेबर्स के साथ दे आर नॉट हैप्पी, किसी को अपने फ्रेंड्स के साथ दे आर नॉट हैप्पी, किसी को अपनी इंस्टीट्यूशंस के साथ दे आर नॉट हैप्पी. अल्टीमेटली ये सारी जगहों की अनहैप्पीनेस को आप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसके कोर में बैठी है एक चीज, एंड दैट थिंग इज द अनअवेयर डीलिंग ऑफ आवर इमोशनल डायमेंशंस. यस, जो बहुत बड़ा एक पार्ट है स्पाउस को एक दूसरे के साथ नहीं बनना, वो एक पार्ट तो पैरेलल है ही. ये सारी जगहों को हमें समझना है, ये सारी जगहों को हमें पहचानना है, ये सारी जगहों को हमें डील करते हुए आगे जाना है. एंड इसी के लिए आज का ये जो सेशन है वो हमने कहीं ना कहीं अगेंस्ट डिप्रेशन के डायमेंशन से कर्मा फाउंडेशन के साथ रह के ये जो डायमेंशन है उसको डिज़ाइन किया गया है. तो आज मैं आपको अभी आगे के सेशन में आई विल गिव यू 7 रीजंस कि जिसका क्या कारण है, आप क्यों इमोशनली डिस्टर्ब होते हो. देन आई विल श्योर गिव यू द 7 सिम्टम्स कि आर यू इमोशनली हेल्दी और नॉट. देन along with that I will give you the 7 solutions of being emotionally healthy. देखिए, ये सेशन में ना तो मैं किसी को कुछ पूछने वाला हूं और ना तो मैं किसी को कुछ यहां पे, यू नो, वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू एंड फ्रो राइट नाउ. तो इसीलिए आपको ये है वो अपने आप की इंटीग्रिटी के साथ देखना है कि मैं इधर कहां खड़ा हूं या खड़ी हूं, मैं कितना इमोशनली हेल्दी हूं. देखिए, ये बिल्कुल सेशन में ये जो मैं रीजंस और सिम्टम्स और ये जो बताऊंगा ये बिल्कुल आपकी वो आरोग्य सेतु ऐप की जैसा है कि आपको अपने आप के साथ रखना है और देखना है, अपने आप का एक छोटा सा टेस्ट करवाना है और देखना है कि हम सही में इमोशनली कितने हेल्दी हैं और आगे जाके हमें कैसे अपने आप को ज़्यादा इमोशनली हेल्दी करना है. So now first of all let us understand the 7 reasons of not being emotional healthy. हम इमोशनली हेल्दी नहीं होते हैं, उसके 7 कारण हम सबसे पहले जानेंगे. The first reason of not being emotionally healthy is number 1, ओवर सेंसिटिवनेस. यानी कि जरूरत से ज्यादा संवेदनशीलता. वी ह्यूमन आर फंडामेंटली द इमोशनल बीइंग. लेकिन एक बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो इमोशंस उसके प्रपोर्शन में होने जरूरी है. प्रपोर्शन इज उसकी मात्रा, वो होनी जरूरी है. जब कोई भी चीज में प्रपोर्शन या मात्रा का अभाव हो, चाहे आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात बताऊं, आप जो खाना खा रहे हैं सोचिए उस खाने में नमक बहुत ज्यादा हो, हालांकि आपको सॉल्ट पसंद है पर फिर भी नमक बहुत ज्यादा हो. अगर कहीं ना कहीं आप सपोज एक पल के लिए सोच लीजिए कि आप स्वीट टूथ वाले व्यक्ति हैं, आपको बहुत ज्यादा मीठी चीजें पसंद है और आपके खाने में मीठी चीजें बहुत ज्यादा है, क्या होगा आपके साथ? ऑब्वियसली यू विल फील कि यार बहुत मीठा खा लिया, अब ज्यादा नहीं खाना. द सेम इज देयर विथ योर इमोशंस. संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, पर संवेदनशीलता अगर आउट ऑफ प्रपोर्शन है तो वो आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति पे एक प्रकार का भारण बन जाएगा.
एक प्रकार का प्रेशर बन जाएगा, एंड देन योर इमोशंस विल नॉट बी रिसीव्ड और रेसिप्रोकेटेड, यानी कि सामने उसका रिस्पॉन्स आपको स्वस्थ नहीं मिलेगा। आप हमेशा अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे बिकॉज ऑफ द ओवर सेंसिटिवनेस। सो पहली बात, पहला रीजन ऑफ नॉट बीइंग इमोशनली हेल्दी इज द ओवर सेंसिटिवनेस। दूसरा रीजन ऑफ नॉट बीइंग इमोशनली हेल्दी इज द expectations. This is something which is very very important to understand कि ये expectations आते कहां से हैं। Most of the time it comes from two things. एक, अपनी खुद की एबिलिटी में लेक्यूना होना, और दूसरा, किसी भी व्यक्ति जिनके साथ हमारा संबंध है वो व्यक्ति ही हमारे लिए सब कुछ करे, ऐसी भावना से उनकी पॉजेसिवनेस को अपने साथ रखना। ये दो ही जगहों से ग्रॉसली एक्सपेक्टेशंस आते हैं। बाकी उसके बहुत ज्यादा सब रीजंस है, पर उसका अगर रूफ रीजन देखा जाए तो इट इज दिस टू। सो एक्सपेक्टेशंस, किसी पे अपेक्षा रखना, ये मेरा काम कर देगा, ये मेरा काम कर ही देगा, ये मुझे हमेशा अप्रिशिएट करेगा, ये हमें हमेशा रिस्पॉन्स करेगा। दीज आर दी एक्सपेक्टेशंस। एंड लेट मी टेल यू कि जब आप ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दैट एनी ह्यूमन इज कैपेबल टू फुलफिल ऑल योर एक्सपेक्टेशंस, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट विल give you a hurt or pain, and as a resultant effect ultimately it will lead you towards the emotional diseases. So emotional health से दूर ले जाने वाले पहला रीजन, that ultimately we are either oversensitive, दूसरा expectations, तीसरा जो है which we see many times in the cases, that is traumatic experiences. हमारी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जिससे हमको किसी व्यक्ति ने बहुत ही सही में बिट्रे किया है, पेन दिया है, या किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ इस प्रकार का व्यवहार किया है जिससे हमारी फिजिकल या तो इमोशनल सही मायने में डैमेज या हार्म हुई है, तो ये भी एक रीजन है कि जहां पे हमारी इमोशनल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब रहती है। The fourth and most important reason is a nature of holding on to the things. कई लोग होते हैं छोड़ नहीं पाते, that's a major problem. बहुत ज्यादा स्टोरीज है, मैं ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा बिकॉज हमें ये तो रीजंस पे जा रहे हैं, फिर हमें सिम्टम्स देखने हैं, फिर हमें सॉल्यूशंस देखने हैं। पर एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है कि जब बुद्धा अपने डिसिपल्स के साथ कहीं पे जा रहे थे तो उन्होंने एक डेड बॉडी रास्ते में गिरी पड़ी थी। उन्होंने वो डेड बॉडी उठाई। अब ये उस वक्त की बात है जब डेड बॉडी को अनहोली माना जाता था, जब डेड बॉडीज को कोई व्यक्ति टच नहीं करता था। उन्होंने सारे रिचुअल्स को बाजू में रख के वो विद रिस्पेक्ट वो डेड बॉडी उठाई, वो साइड में रख दी ताकि उनका रिस्पेक्ट हो पाए, उसका सही क्रिमेशन किया और वो आगे चल दिए। उनके डिसिपल्स भी आगे चल दिए। आगे चलते चलते सुबह हो गई, पूरी रात वो चले, सुबह हो गई। तो फिर एक डिसिपल ने फाइनली पूछा कि महात्मा आपको नहीं लगता आपने पाप किया है? तो बुद्धा ने बोला कि नहीं। तो उन्होंने बोला, उसके डिसिपल ने, कि क्यों आपने वो डेड बॉडी जो उठाई थी तो वो तो कहीं ना कहीं एक सिन है, एक पाप है। तो बुद्धा ने हंस के जवाब दिया कि पाप वैसे तो ये था ही नहीं, पर अगर इसको पाप गिना जाए तो मेरे से ज्यादा पापी तो आप हो। तो डिसिपल ने किया क्यों? एंड ही लाफ्ड एंड टोल्ड, मैंने तो उस डेड बॉडी को सिर्फ 1 किलोमीटर उठाई, 1 मील उठाई, तुमने उस डेड बॉडी को पूरी रात उठाई है अपने अंदर। दिस इज अ नेचर ऑफ होल्डिंग ऑन टू द थिंग्स। कभी किसी व्यक्ति से हमें हर्ट होता है,
कहीं पे एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, कभी कोई बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उसको अपने आप के साथ इतने जोड़ देते हैं कि हमारे मन में वो ही विचार चला करते हैं. दिस इज अ नेचर ऑफ होल्डिंग इनटू द थिंग्स, ऑन टू द थिंग्स. This is also one of the major reason of creating an emotional disease. The fifth reason, very important fifth reason जो मैंने नोट डाउन किया है इधर, of dealing with emotional health is, और उसका रीजन जो है, is the absence of the art of expression. अपने आप की भावनाओं को अभिव्यक्त करना, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है. और जैसे हम कोई साइंस सीखते हैं ना, 1 2 3 4 लिखना सीखते हैं, ABCD लिखना सीखते हैं, वैसे अपने आप को एक्सप्रेस करने की आर्ट भी हमें कहीं ना कहीं बचपन से सिखाई जाती है. हम उसको कॉन्शियसली सीखते नहीं. जैसे कि हर एक को बोला जाता है बच्चों को कि चलो असेंबली में आप आज का टर्न है, आप बोलिए. या तो कई बार टीचर्स बोलते हैं नहीं बच्चे आप खुद बताओ, आपके पापा नहीं बताएंगे कि आपको क्या चाहिए. ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपको आर्ट की एक्सप्रेशन की आर्ट आए. बट हमारा मेजर प्रॉब्लम क्या है? हमें वो आर्ट कहीं ना कहीं सीखने को कम मिलती है, और इसलिए व्यक्ति हमेशा इमोशनली डिस्टर्ब रहता है. क्यों? दो में से एक रीजन. कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में जो आता है, जैसा आता है, उसी वक्त पे उसको उसी इंटेंसिटी से एक्सप्रेस करने की आदत होती है. गुस्सा बहुत एक्सप्रेस कर दिया, रोना आया सबके बीच में रो दिए, डर लगा वहीं पे डर के बैठ गए, पैनिक में आ गए. जो फीलिंग आई उसको उसी फॉर्म में, उसी तीव्रता से या तो एक्सप्रेस करते हैं. और एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत फील किया करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही ये सारी जो भावनाएं हैं उसको अपने अंदर ही रखते हैं. एंड दैट ऑल्सो अल्टीमेटली क्रिएट्स एन इमोशनल disease. This is also a very important thing to understand, that absence of art of expressions. The sixth major reason of having this problems of emotional health is having an habit of much colored glasses. बहुत नॉन एग्जाम्पल जो मैं पहले कई बार दे चुका हूं, बहुत ही जल्दी से रिपीट करूंगा कि एक व्यक्ति था जो अपने नेबर को हमेशा बोलता रहता था डिटर्जेंट बदलो, आपके जो सारे कपड़े होते हैं वो धुलने के बाद भी पीले लगते हैं. और देन फाइनली एक दिन जाके उस नेबर ने उनको बोला कि भैया मेरा डिटर्जेंट बदलने की जरूरत नहीं है, आपका ग्लास बदलो, आपके ग्लास में बहुत ज्यादा पीली जो चीजें हैं वो चिपकी हुई है, मेरे कपड़े तो नॉर्मल वाइट ही है. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज को एक दृष्टिकोण से देखने की आदत होती है, एक ही कलर ऑफ ग्लास में. जैसे आजकल के जमाने में कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है, या तो किसी व्यक्ति को मेरी पड़ी नहीं है, या तो हर कोई व्यक्ति मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या तो हर कोई व्यक्ति है जो मुझे इग्नोर करता है, या तो हर कोई व्यक्ति है जो अपना ईगो मेरे पे सुपीरियोरिटी होके डालने की कोशिश करते हैं, या तो आजकल के जमाने में बोलो तो ही आपका मूल्य है, बाकी तो है ही नहीं. ये सब हमारी फिक्सिटीज है, इनको हमें पहचानना होगा. ये जो फिक्स कलर्ड ग्लासेस है, वो कलर्ड ग्लासेस कहीं ना कहीं हमें इमोशनली डिजीज्ड रखते हैं. दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. So having a habit of much colored glasses. And सातवां और last reason of being emotionally diseased is the lack of clarity about one's own self. खुद के बारे में क्लैरिटी का अभाव. मुझे गुस्सा कब आता है, हम पेशेंट्स को कभी कभी पूछते हैं तो हमें बहुत नया लगता है पेशेंट की, जब हमें बहुत नया लगता है जब पेशेंट बेसिक आंसर भी नहीं दे पाते. हम बोलते हैं कि भैया आपको गुस्सा कब आता है, और वो हंसते हैं और बोलते हैं कि गुस्सा तो आ जाता है, कभी भी आता है, मैं तो कभी कभी बात पे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता हूं. अरे भैया अगर आपको ऐसा होता है then you should understand that you need to improve your this not. छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, डू यू नो हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइफ एनर्जी इट टेक्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी इट सक्स.
How much amount of good relationships it is this kind of small habit is suffering? You need to understand this. So emotional health ना होने के ये 7 रीजंस है, और उसके 7 सिम्टम्स क्या हैं? 7 सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि आप इमोशनली हेल्दी नहीं है। एक ही बात पे बार बार कंप्लेन करने का नेचर होना, इट इज अ साइन दैट यू आर नॉट इमोशनली हेल्दी। जैसे कि आपको अपना बॉस पसंद नहीं है और आप हर रोज वही बॉस की बात हर रोज किया करते हैं। जैसे कि आपको अपने टीचर पसंद नहीं है और आप हर रोज वही बात अपने मन में चलाते हैं, या तो किसी को बोला करते हैं, और अगर कहीं पे नहीं बोल पाते हैं तो तुरंत ही फील करते हैं कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। The important thing here is not the absence of expression. The important thing here which you need to understand within yourself कि ये क्यों इतना ज्यादा ये चीज मुझे परेशान करती है। आप अपने अंदर की ये चीज को एक बार समझ लेंगे तो वो चीज फिर आपको उतनी ज्यादा परेशान नहीं करेगी। You need to understand this. So the first symptom is many times one is having a habit of keeping oneself always as a complainer. एक बात। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, that is an irritation, anger or fear which is out of proportion or which is constant. वो कांस्टेंट रहता है। एंगर हम सब में है, फियर हम सब में है। वी ऑल आर बीइंग ह्यूमन, वी ऑल आर इमोशनल एंटिटीज, बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज इट रिमेनिंग एज अ कॉन्स्टेंट सब्सटेंस ऑलवेज ऑन द सर्फेस? देन इट्स अ साइन दैट वी आर नॉट इमोशनली हेल्दी इनफ। हमेशा अपने आप का इरिटेशन वाला पार्ट जो है वो सरफेस पे रहना, हमेशा अपने आप का फियर जो है, हर चीज को इनसिक्योरिटी के ही ग्लासेस से देख के रिएक्ट करना। देयर आर मेनी फिजियोलॉजिकल रीजंस ऑफ इट। मैं अभी ये नहीं समझा रहा हूं। द रीजन इज, हमें ये क्यों है वो समझने की बजाय हमें वो समझने की जरूरत है कि अगर ये सारी चीजें हैं तो उसके साथ डील कैसे करना है, और डील कैसे करना है उसको समझने से पहले वो जरूरी है कि वो स्वीकार आए कि हमें इसके साथ डील करने की जरूरत है। एंड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस वी ऑल आर ट्राइंग इन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स. And it's not only me, like, there are many wonderful people in this against depression thing. Like, there is one very renowned and wonderful psychiatrist, Dr. Nehal Shah, Dr. Manan Thakrar, many people. They are always in the process of creating an awareness in the society to create an emotional health or the psychological health. Anyways, so coming to this note, 7 symptoms में पहला जो है वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड, दूसरा जो है दैट इज द ऑलवेज हैविंग ऑन सरफेस फियर, एंगर एंड इरिटेशन. द नेक्स्ट थिंग इज दैट हैविंग कंप्लेन्स अबाउट ऑलमोस्ट ऑल रिलेशंस. आपके संपर्क में जितने हैं, चाहे आपके इन लॉज गिन लो, आपके बच्चे, आप बड़े हो, आपके बच्चों के लिए, अब आपके कनेक्ट में जितने लोग हैं उनके साथ आपको तकलीफ है. हर एक में कोई ना कोई तकलीफ है आपको. इफ यू आर फीलिंग सो, देन ऑल्सो दैट मीन्स दैट यू आर इमोशनली नॉट वेरी हेल्दी. You need to correct or rectify your emotional health. This is also something which is very important. Then चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है, that is an inability to relax. This is also something which you need to understand. देखिए, हम सब जब रात को सोने के लिए जाते हैं, at that time we are there to relax ourselves. पर अगर हमें इमोशनली हेल्दी रहना नहीं आता है, तो जैसे ही रात को
नाइट लैम्प शुरू होगा, वैसे ही इधर की आपकी जो बत्ती है वो स्मॉल या छोटी होने की बजाय एक हेलोजन की तरह शुरू हो जाएगी। हर एक वो पेनफुल स्टेटमेंट आप रात का याद करेंगे जो आपके बॉस ने आपके लिए बोला है, जो आपका कलीग आपके लिए बोल रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, जो आपके इनलॉज आपके लिए बोले हैं और आपको लग रहा है कि ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, या तो इनलॉज का हेलोजन शुरू हो जाएगा कि हमें ही ऐसे लोग मिले हैं जो मेरी बेटी को सही से नहीं रख रहा है, जो उनके इनलॉज हैं वो सही से नहीं रख रहे हैं। मैनी 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 द होल हमारा जो ये सोशल जो वेब है, वो पूरा सोशल वेब एक बहुत ही बड़ी हेलोजन की तरह आपके माइंड में शुरू हो जाएगा। और आपको पता है ना हेलोजन कितनी गर्म होती है, कभी पास जाके देखिएगा। अब आप कहां से रिलैक्स करेंगे, आप कहां से सो पाएंगे? कॉन्स्टेंटली यू आर थिंकिंग अबाउट सम मेजर इमोशनली बॉदरिंग फैक्टर। किसी के लिए वो करियर है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ, किसी के लिए हस्बैंड वाइफ के पर्सनल रिलेशंस, किसी के लिए एम्बिशंस, किसी के लिए इंटरपर्सनल रिलेशंस इन द लोकेशन व्हेन यू आर डूइंग जॉब, किसी के लिए दिस काइंड ऑफ कोरोना डायमेंशंस, एनीथिंग। किसी के लिए अपना खुद का हेल्थ, रात को सोते रहेंगे और गिनते रहेंगे कितने हार्ट बीट्स मेरे अभी तक हुए, कितने कम हुए, कितने ज्यादा हुए, कितना पाल्पिटेशन हुआ, कितना ये हुआ। यू कीप थिंकिंग अबाउट इट। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू करेक्ट। सो वन मोर इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ बीइंग इमोशनली डिजीज्ड और नॉट हेल्दी इज इनएबिलिटी टू रिलैक्स वन सेल्फ। अपने आप को रिलैक्स्ड ना रख पाना। नेक्स्ट important sixth symptom is the seeking behavior, emotionally seeking behavior, या तो attention seeking behavior, या तो हमेशा हमारे तरफ किसी का ध्यान हो, इस प्रकार का बिहेवियर, या तो कोई हमारी बात समझे, इसके लिए हर एक व्यक्ति को अपने मेंटल या किसी भी डायमेंशन के बारे में क्लेरिफाई करते रहना, उस प्रकार का बिहेवियर। इस प्रकार की जो सारे जो चीजें हैं, दैट इज ऑल्सो अ साइन दैट वी आर इमोशनली नॉट हेल्दी इनफ। एंड द लास्ट एंड द सेवेंथ साइन इज, जो आज के समय में जो हम बहुत ही ज्यादा सरफेस पे देख रहे हैं, दैट इज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज। मुझे ध्यान में आ रहा है केस, जैसे ही कोरोना का जो जनता कर्फ्यू हुआ था, उसके 3 दिन पहले ही देयर वाज वन पेशेंट जिनको बताया गया था कि कल से 33% एम्प्लॉयज ही आएंगे। और इनिशियली ये बहुत, एंड ही वाज द पर्सन हु वाज अटैच्ड टू एसेंशियल सर्विसेज, एंड इमीडिएटली ही स्टार्टेड हैविंग अ फियर दैट अब मेरे करियर का, अब मेरा जो ये जो ग्राफ है, मेरा प्रमोशन है, इसका क्या होगा। एंड देन अल्टीमेटली इट लेड टू द स्लीपलेस नाइट्स एंड हैविंग अ वेरी वेरी फियरफुल टाइम। और कहीं ना कहीं मैंने सबसे पहले बोला ना, इमोशनल हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है पता है? आपके पास सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं रह पाते। अब देखिएगा, इमोशनली डिजीज्ड व्यक्ति जो है, उसको वो कोई भी श्रमिक नहीं है जो अभी जिसके पास एक अपने बच्चे को छांव देने के लिए, जब वो चलता हुआ निकला है आज के वक्त में, तब उसको बच्चे को छांव देने के लिए कपड़ा भी नहीं है और इतना ज्यादा वजन उठा के अपने घर तक पहुंचना है, वो श्रमिक कभी इमोशनली डिजीज नहीं है। लेकिन हम सब, हमारे पास सारी भौतिक सुविधाएं हैं, स्टिल वी आर नॉट हैप्पी, एंड दैट्स द रीजन that we need to understand how to deal with our emotions consciously. So these are the signs that we need an emotional health. So अब the last note of the today's talk is the 7 solutions of being emotionally healthy. अपने आप को इमोशनली हेल्दी रखने के लिए क्या 7 एक्टिविटीज, क्या 7 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, that you need to understand. सबसे पहला, शायद कई लोगों को कम पसंद आएगा, कई लोगों को इमीडिएटली सवाल उठने लगेंगे, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि
ये तो हम इतना अच्छा इमोशनली हेल्दी होने का ट्राई कर रहे हैं और ये सर हम पे ही चीज़ें थोप रहे हैं, पर फिर भी सबसे पहला उसका सॉल्यूशन वो एक ही है, एंड दैट इज मेकिंग वन सेल्फ अकाउंटेबल फॉर वंस ओन इमोशनल हेल्थ। यानी कि आप इमोशनली अभी अगर डिजीज्ड हैं तो आपको अपने आप को ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गिनना है। ये सबसे पहला जो हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो सबसे पहला उसका एक पार्ट है जो हमें समझना है। स्टॉप ब्लेमिंग, ब्लेम करना बंद कीजिए। तो ये अगर आप अपने आप को पूछ रहे हैं कि मैं इमोशनली हेल्दी हूं कि नहीं, मैं खुश हूं कि नहीं अपने संबंधों से, अपने इमोशंस से, और अगर आप कम इमोशनली हैप्पी हैं तो सबसे पहला तो ऐसा बोलना बंद कर दीजिए कि मैं इसलिए हैप्पी नहीं हूं क्योंकि मेरा बॉस ऐसा है, मैं इसलिए हैप्पी नहीं हूं क्योंकि मेरे इन-लॉज ऐसे हैं, मैं इसलिए हैप्पी नहीं हूं क्योंकि मेरे टीचर ऐसे हैं, मैं इसलिए हैप्पी नहीं हूं क्योंकि मेरे नेबर्स ऐसे हैं, मैं इसलिए हैप्पी नहीं हूं क्योंकि मेरा करियर ऐसा है, मैं इसलिए। स्टॉप ब्लेमिंग एंड टेक अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके खुद के अंदर कोई एक भाव जो है वो ऐसा है जो आपको स्वस्थ नहीं होने देता मन से। वो भाव कौन सा है? और वो तभी समझ पाएंगे या तभी उस तक पहुंच पाएंगे जब हम ब्लेम करना बंद करेंगे। When we stop blaming the outward areas of life, when we stop blaming the outward reasons for disharmony within, when we stop blaming the outward conditions of something which are giving us disharmony within, which are keeping us unhealthy इमोशनली, मेरे अंदर क्या छुपा है, ये सबसे पहला फंडामेंटल डायमेंशन है। और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बिल्कुल उल्टा ही करते रहते हैं। हमें बाहर का कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति ब्लेम करने के लिए चाहिए। दिस इज नॉट the way we can remain or create an emotional health inside। या तो हम लोग हमारी खुद की इमोशनल हेल्थ को जनरेट कर पाए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन टू जनरेट द इमोशनल हेल्थ इज गेट द क्लैरिटी अबाउट द इमोशनल बॉडी ऑफ द सेल्फ। आप समझिए, आपको वो मालूम होगा ना कि आपकी बॉडी में, आपको खुद को मालूम होगा कि आपकी बॉडी में कहां पे तिल है, मालूम है कि नहीं? सिंपल। इसी तरह से आपका मन, आपका इमोशनल डायमेंशन क्या देख रहा है, क्या फील कर रहा है, कौन सी परिस्थितियों में क्या फील कर रहा है, दैट ऑल्सो इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट सॉल्यूशन इज गेट द क्लैरिटी अबाउट द सेल्फ एंड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओन इमोशनल इश्यूज। स्टॉप ब्लेमिंग। और उसका अगर दूसरा आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं जरूर बताऊंगा एक चीज को कि इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो स्टार्ट राइटिंग। लिखना शुरू कर दीजिए आप हर रोज रात को, दिन में जब भी आपको वक्त मिले, कि आज मेरे इमोशन में ये जगहों पे इसने जब ये किया, अब उस वक्त उसने गलत किया इसलिए मुझे ऐसा फील हो, ऐसा मत लिखिए। इसने जब ये किया तो उस वक्त मेरे अंदर ये चीजें हुई। फिर आप देखेंगे जब एक वीक के बाद अपनी डायरी पढ़ेंगे, 10 दिन के बाद डायरी पढ़ेंगे, 15 दिन के बाद डायरी पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका जो पूरा इमोशनल वर्ल्ड है वो किसी 1, 2, 3 लोगों के द्वारा इतना कंट्रोल हो चुका है कि कहीं ना कहीं आपने उसके अलावा तो जिंदगी देखी नहीं। ये हमारा पहला फॉल्ट। और दूसरा पार्ट, आप देखेंगे कि चीजें रिपीट होंगी।
कई बार व्यक्ति बदलेगा। आज शाक वाले ने ये अच्छा नहीं किया, आज मेरे पास जो पार्किंग में मेरी बाजू में खड़ा था उसने ये अच्छा नहीं किया, आज मेरे नेबर ने ये अच्छा नहीं किया, आज मेरे टीचर ने अच्छा नहीं किया, आज मेरे स्टूडेंट ने ये अच्छा नहीं किया। बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड दैट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स you must be revolving around the same issues, and those issues are lying within you. जैसे ही जब भी आप अपने भीतर का वो पार्ट जब तक पहचानेंगे नहीं, इमोशनल हेल्थ आपके पास आने से दूर रही। तो ये पहला पार्ट, दैट टू गेट एन इमोशनल हेल्थ, पहला गेट द क्लैरिटी अबाउट द सेल्फ and be responsible for your own emotional issues. Stop blaming. बाहर के लोगों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, नंबर 1. नंबर 2 is learn of expression. That is expressing the things in appropriation. जो अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी है, अपने अंदर भीतर बहुत सारे इमोशंस को दबा के रखना और फिर बस्ट आउट हो जाना। ये एक ग्रुप ऑफ मेनी पीपल डू दिस, मेनी पीपल never express and they keep, many people are many times it happens absolutely otherwise, that many people are so expressive that they keep expressing their emotions at every minute. Understand? कई बार ऐसा होता है, हम लोग कई बार जब केसेस लेते हैं तो हम देखते हैं कि कम्युनिकेशंस होते हैं, जब भी मिसकम्युनिकेशंस होते हैं, हमने एक चीज को बहुत ही कॉमनली देखी है, एंड दैट इज कि कई बार रिसीवर यानी कि जो व्यक्ति को मैसेज देना चाहते हैं वो, और जो गिवर, जो व्यक्ति जो मैसेज देना चाहता है वो, उन दोनों के बीच हेल्दी एक्सप्रेशन चैनल एस्टैब्लिश ही नहीं हुई। बच्चा सीधा सुसाइड कर देता है कई बार, अनफॉर्चुनेटली वी सी मेनी केसेस दिस डेज। लेकिन कभी भी डायरेक्टली 1 to 1 क्या कभी उसने फादर को कुछ कहने की ट्राई की? और दूसरा, फादर या मदर उसको कभी उन्होंने अपना बेटा जो कहना चाहता है उसको उसी के टेबल से, उसी के पर्सपेक्टिव से सुनने की स्पेस दी? ये सिंपल सी चीज, और कहीं ना कहीं इट एंड्स इनटू अ वर्स्ट इंसिडेंस इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। सो अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन की हेल्थ is one of the very important thing in generating the emotional health. कभी अपने बॉस को एक ऐसा ईमेल किया जिसमें अपनी पर्सनल कुछ इमोशनल डायमेंशन जो उनके नेचर से, जैसे कोई बॉस होते हैं बहुत डोमिनेटिंग तरीके से काम करने का उसका नेचर होता है, कभी बताओ ना उनको शांति से कि बॉस मैं और ज्यादा पोटेंशियल से काम कर सकता हूं, बस हल्की सी गुजारिश है, आप ऐसे प्लीज मुझे काम मत करवाइए, मैं इससे ज्यादा सप्रेस हो जाता हूं, इससे मेरा वर्किंग पोटेंशियल हो जाता है, बता के तो देखिए, थ्रो यू आउट। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज क्रिएटिंग अ हेल्दी एक्सप्रेशन इन क्रिएटिंग एन इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ जनरेट करने के लिए आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ दूसरा सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव अ हैबिट ऑफ एम्पथाइजिंग द अदर साइड। हैव अ हैबिट, आई रिपीट, ऑफ एम्पथाइजिंग, दैट इज उनको क्या फील कर रहा होगा, हो रहा होगा, द अदर साइड। मेरे एक बहुत ही पसंदीदा पोएट है सौम्य जोशी करके, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पोएट्री लिखी थी सेल्समैन पे, कि एक व्यक्ति जो घर घर जाके ह्यूमिलिएट होके वापस आता है, वो कैसे अपने घर अच्छा सा काम करके खुशी खुशी वापस आता है और बोलता है कि आज मैंने इतने रुपए का काम किया, इसलिए द किड्स आर लविंग हिम बिकॉज ही हैज डन सम रेप्यूटेड जॉब। लेकिन हमारे घर पे जब वो आता है, वी ह्यूमिलिएट देम।
सो द आइडिया इज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट इमोशनली हेल्दी. हमें जब बॉस टारगेट देता है तब हमें कभी भी बॉस की मजबूरी समझ में नहीं आती. हमें सिर्फ हम पे जो काम दिया जाता है वो ही समझ में आता है. और बॉस जब आपको टारगेट देता है तब एक फील्ड वर्क की क्या तकलीफें हैं वो कभी कभी नहीं समझ पाता. उसको तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि मुझे कैसे अपना टारगेट खत्म करवाना है. अब देखिए, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, जो लोग कहीं ना कहीं वो जो क्लासरूम में वाइवाज में कई टीचर्स होते हैं ना, जस्ट वेटिंग कब ये बंदा टेबल की अदर साइड आए और कब मैं उसको सुना दूं. तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक इमोशनल हेल्थ जनरेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी पड़ेगी या करनी होगी, दैट इज एक हैबिट रखनी होगी. कोई भी टाइम पे जब हमारा इमोशन बहुत सरफेस पे आ जाता है, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो इनसिक्योरिटी का हो, चाहे वो फियर का हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति इनडिफरेंस का हो, किसी व्यक्ति के प्रति घृणा का हो, किसी व्यक्ति के प्रति इरिटेटेड फील करने का इमोशन हो, कोई भी इमोशन जब बहुत ज्यादा बार बार सरफेस पे आए, हमेशा दूसरी तरफ कहां से वो इमोशंस आते हैं उसको भी समझ के अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. ऑलवेज एक बात जरूर मैं आपको बताऊंगा, आजकल एक चीज जो बहुत ही हेल्पफुल हो रही है, दैट इज अ ड्रोन. हल्का सा ऊपर रहता है ना, और ड्रोन और हमारे विजन में मेजर डिफरेंस ये है कि ड्रोन ईगल जितना ऊपर भी नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग यू टू गो टू अ हिमालय एंड बिकम अ मॉन्क, इमोशनली मॉन्क. आई एम नॉट सेइंग दिस. एंड जो ड्रोन है वो बिल्कुल जो हमारी सरफेस है सिर्फ उतना ही देखता है, ऐसा भी नहीं. लिटिल हायर, ड्रोन इज लिटिल हायर, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ ड्रोन इज इट कैन सी द होल टॉप व्यू. पूरा टॉप व्यू दिखता है उसमें. तो टॉप व्यू यानी दोनों साइड को देखने की एबिलिटी होना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन बीइंग इमोशनली हेल्दी. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्न एन आर्ट ऑफ लेटिंग गो विद अ स्माइल. चेहरे पे हंसी के साथ जो चीजें आपको परेशान कर रही है उसको लेट गो करना, उसकी हल्की सी आर्ट सीख लेनी बहुत जरूरी है. हम कभी कभी बहुत ज्यादा ग्रजीज को होल्ड कर देते हैं. जरूरत से ज्यादा, एक वर्ड जो उर्दू का मुझे बहुत पसंद है, तवज्जो. जरूरत से ज्यादा कभी कभी बहुत छोटी चीजों को तवज्जो दे देते हैं. किसी का, खास करके किसी का ओपिनियन कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, ये मैं नहीं चला लूंगा, ये मैं भूलूंगा ही नहीं, मैं मेरी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा. लेकिन पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे तो जिंदगी जाने के बाद करोगे क्या उस इमोशन का? इज इट गोइंग टू हेल्प यू इन बीइंग समथिंग एल्स इन नेक्स्ट बर्थ, बीइंग मोर बेटर इन नेक्स्ट बर्थ? आई डोंट थिंक सो. सो द आइडिया इज हैव अ लर्न एन आर्ट ऑफ letting go with a smile on your face. अपने इन-लॉज की कुछ चीजें पसंद नहीं, इन-लॉज को अपने किड्स की कुछ चीजें पसंद नहीं है, कुछ जनरेशन गैप के इश्यूज हैं, अपनी बच्चों की कुछ चीजें पसंद नहीं है. इट्स ओके. किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा परफेक्शनिस्ट रहने की आदत होती है कि उनको कोई व्यक्ति जो परफेक्शनिस्ट नहीं रहता वो पसंद ही नहीं है. किसी व्यक्ति को हर चीज को इन टाइम करने की इतनी आदत होती है कि वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब कोई व्यक्ति इन टाइम कोई चीज नहीं करता. इट्स ओके. अपना जो लेयर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको बढ़ाने की जरूरत है. सो दैट इज अ नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ बीइंग इमोशनली हेल्दी. द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज लर्न टू लव बियॉन्ड योर आइडेंटिफिकेशंस. हमारी खुद की कुछ फिक्सिटीज है, हमारी खुद की कुछ फिक्सिटीज है. जैसे कि व्यक्ति ऐसा हो तो ही, व्यक्ति जो ऐसा हो तो ही मुझे पसंद आएगा. हमें जो चीजें सही से नहीं रखते वो लोग पसंद नहीं है. कई लोगों को जो कार्य धीमा करते हैं वो पसंद नहीं है.
स्लो करते हैं वो। कई लोगों को बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो लोग पसंद नहीं है। कई लोगों को जो लोग बोलते ही नहीं है वो लोग पसंद नहीं है। अरे भैया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्यों इतना ज्यादा ऐसा होने पे मजबूर करता है जैसा वो चाहता है कि वो व्यक्ति हो? It's something which isn't it weird? And the beautiful part is we ourselves never want to be the way other one wants us to be. तब तो तुरंत हमारा आ जाता है ना, मैं ऐसा क्यों बनूं, मैं सही हूं, वो गलत है, isn't it? So the idea here, in order to remain emotionally healthy, is that learn to love beyond one's own identification, fixities, or reduce your barriers of the acceptance. किसी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए, किसी व्यक्ति को प्रेम करने के लिए, किसी व्यक्ति के साथ लव शेयर करने के लिए, किसी व्यक्ति को हेल्प करने के लिए, किसी व्यक्ति को वार्मथ देने के लिए, जो भी कुछ लेयर्स हैं उसको हो सके उतने हल्के रखने की जरूरत है. रिड्यूस दोज लेयर्स. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम स्टिल गेटिंग the likes and the love from the ones who have joined right from the beginning. इतने वक्त तक लाइव रहना और सुनना वो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमारी जो ये एक्टिविटीज़ है कर्मा फाउंडेशन की अगेंस्ट डिप्रेशन की, उसको हमें कहीं ना कहीं एनकरेज करती है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन which is very very practical is that everyone to remain emotionally healthy, everyone needs to learn that how to find a me time during a day. हर एक व्यक्ति बिजी है. डोमेस्टिक जो हाउसवाइफ्स है वो भी बिजी है, जो हाउस प्लस ऑफिस का काम करती है वो भी बिजी है, जो व्यक्ति कुछ नहीं करती है वो भी बिजी है, जो व्यक्ति बहुत कुछ करती है वो भी बिजी है. लेकिन जैसे आपको फूड लेना है रेगुलरली, ऐसे ही आपको मी टाइम निकालना है. बिना मी टाइम के आप कभी भी इमोशनली हेल्दी नहीं रह सकते. एंड व्हाट इज मी टाइम? मी टाइम इज अ टाइम फॉर ईदर रीडिंग और राइटिंग और फॉर योर हॉबी और फॉर music listening or for learning new thing. Anything out of this. The only thing is it is extremely important to find a me time. आप अगर me time नहीं पा सकते दिन में, आई एम श्योर कि अगर मैं थोड़ा सा और डीपर जाके समझाने की कोशिश करूं, आई एम सॉरी फॉर द डिफरेंस इन द लाइटिंग, बट आई फील दैट जिस प्रकार की शाम बालकनी में से हुई है, इट्स अ वंडरफुल टाइम देन व्हेन सनसेट्स. जिस प्रकार का जो मी टाइम है उसके डायमेंशन को मैं थोड़ा सा और डीपर डायमेंशन से अगर टच करना चाहूं तो उसमें द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मी टाइम है ना वो स्काई के साथ जुड़ा हुआ है. आकाश तत्व, हमारा जो आकाश तत्व है. वायु तत्व इज अवर थॉट्स, अवर इमोशंस. Fire is our ambitions, our aspirations, our future predictions, our goals, the way the things, our creativity, everything is fire. Kaf is our alas. But space is a time where you are with yourself, with an ease. There you are not trying to behave the way other ones want us to be. हम कुछ बनने की ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप के साथ हैं. दिस इज मी टाइम. लेट मी टेल यू, आजकल के समय में हेल्दी डाइट के बारे में हम बहुत अवेयर हो चुके हैं, पर ये मी टाइम वो कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है. एंड लेट मी टेल यू, ओनली हेल्दी डाइट विल लीड यू नोवेयर विदाउट गिविंग अ मी टाइम. आप चाहे कितने भी सलाड्स खा लो, जब तक वो कुकुम्बर आपके अंदर एक शांत एक्सपीरियंस बन के नहीं आएगा, तब तक वो कुकुम्बर आपको पेट का दर्द ही देगा, चाहे आपको किसी भी डाइटिशियन ने बोला है. सो टू रिमेन इमोशनली हेल्दी, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मी टाइम
every day. Then the last solution is understand the art of balancing. We all know in our Srimad Bhagavad Gita it is written sama dukha sukhe krutva labha labhau jaya jayau. द अदर वे, अगर हेल्थ की डेफिनेशन देखा जाए तो आयुर्वेद में जो बताई गई है समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न मन आत्म इंद्रिय. आगे नहीं जा रहा हूं अभी. द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट इमोशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस. इंडिफरेंस पिछले वाले ट्रॉमा से तय करके फिक्सिटी रखना, वो आपको जिंदगी जीने की ब्यूटी से दूर लेके जाएगा. और ओवर इमोशनल होना वो हर रोज आपको हर्ट करेगा, आपको हर रोज पेन देता रहेगा. आप हर रोज हर्ट होते जाएंगे, पेन में जाएंगे और वापस आप इसी तरह से किसी के साथ जुड़ते जाएंगे, वापस आप हर्ट होते जाएंगे और आपकी लाइफ अनफॉर्चुनेटली यही विशियस साइकिल में खत्म हो जाएगी. और उस वक्त तक अगर कोरोना नहीं गया होगा तो कोई व्यक्ति लास्ट क्रिमेशन सेरेमनी में भी नहीं आएगा. सो व्हाई टू वेस्ट द लाइफ, द मोस्ट प्रेशियस पोजेशंस जो हमारे संबंध हैं, हमारे फिजिकल पोजेशंस हैं, उनको क्यों वेस्ट कर देना छोटे छोटे इमोशनल हर्ट्स में से. ये मुझे क्यों ऐसा बोल रहा है, मेरा इरादा ये था, उसने वो समझा, मैं ये चाहता था, मेरी लाइफ ने वो किया, मैं इसको चाहता था, मुझे ये मिला, मुझे ये करना था, मैं ये कर रहा हूं. मेनी ट्रिफल थिंग्स. अगर आप एक होलिस्टिक डायमेंशन देखेंगे, होलिस्टिक पिक्चर देखेंगे, यू विल गेट टू नो दैट द थिंग्स आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज योर ओन लाइफ इज एंड द हैप्पीनेस इन योर लाइफ इज. सो to deal with emotions healthily, make sure that you are doing this. फिर भी अगर आप इमोशनली हेल्दी नहीं हो पाते हैं तो you should consult a counselor, you should listen to a good music. Music is a great healer. Music and meditation हम कभी बात करेंगे उसके बारे में आगे, पर जस्ट बता रहा हूं that music and meditation are the best healers. तो मेडिटेट रेगुलरली करना, म्यूज़िक सुनना, खास करके इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुनना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली हेल्दी रहने तक आपको लेके जाएगी. आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप ये सेशन ख़त्म होने के बाद अगर कुछ सवाल पूछते हैं या पर्सनली आप डीएम करते हैं या तो कर्मा फाउंडेशन के कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप सवाल पूछते हैं. I'll be more than happy to guide you, to be with you and to give you a feel that life is all about living. Life is all about being open to various people. Life is all about being open to various relations. और जिसमें से जो चीज़ें अच्छी लगती है, हैप्पी करती है, उनके साथ जिया जाए. जो चीज़ें अनहैप्पी करती है उसका सोर्स समझ के अपने अंदर वो सोर्स को हेल्दी किया जाए. जैसे ही ये ट्रांजिशन, ये मेटामॉर्फोसिस हम करना शुरू करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे, आई एम श्योर दैट द लाइफ विल बिकम वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी फॉर सो लॉन्ग टाइम. थैंक यू वेरी मच कर्मा फाउंडेशन. Many people, मैं हर एक का नाम नहीं लूँगा, but the way Murugesh Bhai is working, the way Karan Khanna is working, the way Priyanshi is working, the way Chiranjeev Bhai is working, the way Vivek is working, who has created this wonderful creatives for this thing, and the way all the people who are joined with NGO, ये Karma Foundation, the way everybody is working, the way Nikita is working, it's nothing like that. I'm finding some question. Viral sir writes, can we prepare a daily journal to find where our triggers are? Yes, Viral bhai, very initially I told the first solution is that ki daily journal is the most important thing. And let me tell you, कहीं ना कहीं उसी से आपको बहुत सारे सवाल जवाब मिल जाएंगे.
Let me tell you, daily journal is your best possible counselor. हर रोज आपके साथ जो जो लोग जुड़े, उस लोगों के साथ जुड़ा हुआ क्या फीलिंग आपको आया, जैसे ही आप उनको समझेंगे ना, उस फीलिंग को लिखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे यहाँ पे हमारा ओवर इमोशनल डायमेंशन प्ले कर रहा है, कहाँ पे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस आया। जैसे ही वो समझेंगे ना, नेचुरली वही चीज़ दूसरे दिन आपको अफेक्ट करनी कम हो जाएगी। सो डेली जर्नल, हर रोज जो जो चीज़ें आपके साथ होती है उसको लिखना और इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। हर्ष राइट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट हर्ष। Praveen Bhai Valera writes, nice session, thank you very much Valera sir. And let me inform to all the viewers who is right now joined that the next session on 25th, if I'm not missing, आपको again creative आ जाएंगे, is going to be with Mr. Valera. He is आपको let me tell you that he is the one who is a life saver. जितना इंपॉर्टेंट काम वो वेंटिलेटर वाला बंदा करता है ना, जो वेंटिलेटर के नॉब्स एडजस्ट करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट काम श्री प्रवीण वालेरा करते हैं by running his own NGO and also by stopping many people who are on the verge of doing suicide. Let me tell you that I know lot of stories shared by him, and he is going to share his perspective day after tomorrow about the increasing number of suicide in today's time. अभी तो दो तीन चीज़ें, आई डोंट नो वालेरा सर आप अभी भी यहाँ पे हैं, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि कैसा है ना, यू नो दैट अभी कोई न्यूज़पेपर में देख रहा था कि सब्जी सही नहीं बनी थी और उसके कारण वो जो हस्बैंड है वो बाहर लटक गया बालकनी पे। हम हंसते हैं, बट लेट मी टेल यू, दोज मोमेंट्स, ये सिर्फ कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो संभाल नहीं पाया, और इसी मोमेंट को सही से ना संभालने की वजह से हम कितने लोगों को गवा देते हैं। अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विच आई रेड इन टुडेज न्यूज़पेपर्स और समवेयर इन सम ब्लॉग, आई डोंट नो वेयर आई रेड। आज का ही एक किस्सा मैंने देखा, मैंने कहीं पे पढ़ा है कि वो व्यक्ति जहाँ पे सफ़र हो रहा था, वहाँ से वो बहुत सफरिंग हो रहा था, वो वापस आया अपने घर पे और बोला कि मैं आज तक जिंदा हूँ, वही इनफ है, क्योंकि मैं तो शायद जिंदा ही नहीं रह पाता। ऐसा लिख के वो बंदे ने सुसाइड कर लिया। अरे भैया, तुम अगर आज तक जिंदा रह गए और उधर से निकल के वापस घर पे आ गया, अब तो जिंदा रह जाना था, पर वो मोमेंट संभल नहीं पाए। उस मोमेंट को संभालना बहुत ही ज़रूरी है, और वो ही काम कहीं ना कहीं वालेरा सर के, जो वालेरा जी के जो ये जो एनजीओ हैं वो करते हैं। वो भी कर्मा फाउंडेशन के इसी पेज पे से वो लाइव होके परसों आपको बताएंगे हाउ टू डील विथ द सुसाइडल इम्पल्सेस. So he'll also talk, and also there are wonderful talks further. There is also one more my talk on the one more day where I'm going to talk about music therapy. I'll feel कि अगर केदार को मैं साथ में जोड़ पाऊँगा तो उन्हीं के साथ भी ये सेशन हम करेंगे. और one more talk will be there by one another wonderful individual, निहारिका जी, जो आर्ट एक्सप्रेशंस या आर्ट थेरेपीज़ के बारे में शायद बात करेंगी. तो देर आर वंडरफुल थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन इन कमिंग डेज ऑन दिस कर्मा फाउंडेशन प्लेटफॉर्म. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड इमोशनली, कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी. लाइफ इज़ ब्यूटिफुल. टेक केयर. Goodbye. I think that let me show a wonderful sunset right at this moment by changing my camera, and then we will finish the video. Goodbye. Take care. A wonderful evening is there to help you. It's a wonderful time. अगर आपको कहीं पे भी म्यूजिक सुनना पसंद है, यही वक्त है. आप वंडरफुली राग यमन या उस पे आधारित कुछ गाने सुन सकते हैं. टेक केयर. गुड बाय. हैव अ हेल्दी टाइम.